کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ کرنتھس کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ ہر ایک زندگی تھوڑے وقت کے لیے خداوند سے اپنے لیے دعا کریں۔ ہاللویا۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں خداوند اس سارے وقت کے لیے۔ تیرے لوگوں نے جی بھر کے پرستش کی ہے خداوند، تجھے مبارک کہا ہے۔ اب تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ خداوند، جہاں جہاں پر تیرا کلام سنا جائے، انٹرنیٹ پر خداوند ان لوگوں کے لیے باعث سے برکت بن جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ میرے عزیز، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم سب مل کر آگے پیچھے ایک بار پڑھیں۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو تلاوت کی ہے، یہ کرنتھس کے نام کلیسیا کو مقدس پولس خط لکھتا ہے، کیونکہ مقدس پولس نے کرنتھس میں کلیسیا قائم کی تھی۔ اس کلیسیا میں مسیحی زندگی اور ایمان کے بارے میں کچھ مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ پولس نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط یہ مسائل حل کرنے کے لیے لکھا۔ کرنتھس یونان کا ایک بڑا بین الاقوامی شہر تھا۔ یہاں پر تجارتی گہما گہمی تھی۔ یہ روم کے صوبہ اخیا کا شہر تھا۔ قابل فخر تہذیب و ثقافت اور طرح طرح کے مذاہب کے لیے مشہور تھا، مگر چاروں طرف پھیلی ہوئی بدکاری اور بد اخلاقی کے لیے نہایت بدنام بھی تھا۔ رسول کو جن مسائل کی خاص فکر ہے، وہ ہے کلیسیا میں تفرقے اور حرام کاری اور مخلوط شادیاں۔ اور یہاں پر مقدس پولس اس کلیسیا کو یہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ ہم عید کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پیغام کو آپ تک پہنچاؤں، گزشتہ ماہ میں، گزرے مہینہ میں جو سیزن چل رہا ہے، روزوں کا سیزن، اس کے متعلق پیغام دیا گیا۔ اور پھر جبکہ عید بہت قریب ہے، عید قیامت المسیح کی تیاریاں
शुरू है और हमने कुछ ही दिनों बाद ईद करनी है, इसलिए ये जरूरी है कि जो लोग मुकद्दस महफिल के प्लेटफॉर्म पर आकर खुदावंद की इबादत करते हैं, उनको भी ईद के मुतल्लिक आगाह किया जाए कि किस तरह हमने ईद करनी है। अगर चाहे ईद पर हमने अपने अपने चर्चेस पर कलामे खुदा को सुनना है, लेकिन आज के दिन हम मुकद्दस महफिल के प्लेटफॉर्म से ये खसूसी पैगाम सुनेंगे कि आओ हम ईद करें। मेरे अजीज, ईद जो है इसका मतलब है खुशी। और फिर एक जगह पर इसका मतलब गवाही भी बयान किया गया है। जब बनी इस्राएल के 2.5 कबीलों ने एक मस्बा दरिया के पास बनाया तो उन्होंने उस मस्बे का नाम ईद रखा, जिसका मतलब है गवाही का मस्बा कि खुदावंद यहोवा ही खुदा है। तो ईद का मतलब है खुशी। और ये खुशी किसी एक फर्द की नहीं है, किसी एक घर की नहीं है, किसी एक घराने की नहीं है, किसी एक कबीले की नहीं है, बल्कि ये खुशी एक इज्तिमाई खुशी है, ये खुशी एक कौमी खुशी है। और हमें कलामे खुदा की रोशनी में देखना है कि हमने इस खुशी को किस तरह मनाना है। मेरे अजीज, मुकद्दस पौलुस इस 8वीं आयत में कहते हैं, बस आओ हम ईद करें। इससे पहले कि हम ईद को देखें, जो पस लफ्ज़ है इसका मतलब है पीछे, अलावा, फिर, इसकी वजह, इसलिए, आखिरकार, लेकिन, बहरहाल, ये सब पस लफ्ज़ के मतलब हैं। और जब मुकद्दस पौलुस इस आयत के शुरू में कहता है, बस आओ हम ईद करें, इसका मतलब है कि पीछे किसी चीज की निशानदही कर रहा है, पीछे उसने कुछ जाहिर किया है, पीछे उसने किसी बात का बयान किया है जिसके मुतल्लिक वो कहता है बस, जिसका मतलब है इसलिए आओ हम ईद करें। अगर हम साथ में देखें तो वहां पर लिखा है हमारा भी एक फसा कुर्बान हुआ है, जिसके मुतल्लिक वो कहता है कि बस आओ हम ईद करें। अगर हम फसा के मुतल्लिक देखें तो कलामे खुदा में ईद और फसा के मुतल्लिक जो बयान किया गया है, जब हम पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की 13वीं आयत को देखते हैं, जब अब्राहम खुदा के साथ उस कमी को बयान कर रहा है कि खुदावंद तूने मुझे क्या दिया है, तो खुदा कहता है कि तू आसमान के सितारों को गिन, जमीन की रेत के जरों को गिन, अगर गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसे होगी। और फिर खुदा ने कहा कि ये मुल्क जिसमें तू परदेसी है, मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। अब्राहम कहता है ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, किस तरह मैं इसे जानूं कि मैं इसका वारिस हूंगा। खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए एक 3 बरस की बछिया, एक 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेंढा, कबूतर के बच्चे, खुमरियां लेकर ले हजूर आ।
और लिखा है कि अब्राहम ने खुदा के लिए वो कुर्बानी की और बछिया, बकरी और मेंढे के दो दो टुकड़े किए और परिंदों को इसी तरह ज़बह करके रख दिया और सुबह से शाम तक उस कुर्बानी पर वो पहरा देता रहा, क्योंकि शिकारी परिंदे झपटते थे और वो उनको हंकाता रहा, उनको उड़ाता रहा, उस कुर्बानी की हिफाजत करता रहा। और शाम के वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब आ गई और खुदा ने उसे कहा कि यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग एक ऐसे मुल्क में जिसे वो नहीं जानते, उसमें 400 बरस तक उस कौम की गुलामी करेंगे और फिर मैं उन्हें 400 बरस के बाद वहां से रहाई दूंगा। वो कौम तेरी नस्ल पर जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, गुलामी का जुआ उनके कंधों पर रखेंगे, उन्हें दुख देंगे और मैं उस कौम की अदालत करूंगा और मैं तेरी नस्ल को वहां से फिर लाकर ये मुल्क हमेशा के लिए तेरी नस्ल को दूंगा, ताकि ये उनकी मिरास हो, उनका मिरासी मुल्क हो। मेरे अजीज, और फिर हम देखते हैं कि ये खुदा के अल्फाज जो उसने अब्राहम से कहे यूसुफ के जमाना में, जब यकूब के दौर में काल पड़ा और यूसुफ बिककर मिस्र में गया और फिर वहां पर वो बादशाह बन गया, उसने अपनी कौम को मिस्र में बुला लिया और जबकि काल बहुत था तो यकूब का खानदान मिस्र में आबाद हो गया, सबसे अच्छी सरजमीन में, जश्न के इलाका में। लेकिन वक्त पर यूसुफ और उसकी नस्ल के लोग मर मिटे। फराउन भी जो यूसुफ के दौर में था, जिसने यूसुफ की दानश्वरी, अक्लमंदी को सलाम किया और उसे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया, वो भी मर गया। एक नया फराउन उसकी जगह पर आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। जब उसने देखा कि बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में बहुत बढ़ रही है, तो उसने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया, अपनी कबीना से कहा कि तुम इनसे हिकमत से पेश आओ, इनमें जो लड़के पैदा हो वो कत्ल कर दिए जाएं और जो लड़कियां हो वो जिंदा रहें, इन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जाएं, इन पर जुल्म किया जाए, इन्हें दुख दिया जाए, इनसे इनकी औकात से बढ़कर काम लिया जाए, मजदूरी कराई जाए, मुशक्कत ली जाए, ताकि ऐसा न हो कि ये बढ़कर हमारे दुश्मनों का साथ देकर हमसे जंग करे और यहाँ से निकल जाएं, आजाद हो जाएं। इनकी जिंदगी में इनके खुदा का वादा जो उसने इनके बाप दादा से किया वो पूरा हो। अब्रीस ने फराउन के वसीला से चाहा कि वो वादा पूरा ना हो, ये कौम पिसती रहे जुल्म की चक्की में, लोहे की भट्टी में, मिस्र में गुलामी के घर में रहे। लेकिन खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, जो हशमत वाला खुदा है, जो जलाल वाला खुदा है, जिसके हाथ में सबका दम है, उसने अपने बंदा मूसा को भेजा और जो उनकी कौम के लिए आजादी का वक्त रहा था वो करीब आ गया और मूसा ने फराउन के पास जाकर कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे लिए ईद करें। तो फराउन ने कहा कि खुदा कौन है, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। और कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा ने मूसा के वसीला से वहां पर 10 आयतें नाज़िल की। मैं इसको ज्यादा नहीं वसीह करना चाहता। और ये 10वीं आयत जो थी पलौठों की मौत, जिस पर
खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि तुम मेरे लिए फसह तैयार करो। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि ये तुम्हारी रिहाई की फसह होगी, ये तुम्हें गुलामी से आजादी की याद दिलाने वाली फसह होगी। तुम अपने घराने की नफरी के हिसाब से एक एक बर्रा लो और उसे ज़बह करो। अगर किसी घराने में कम लोग हो तो 2 घराने मिलकर एक बर्रा लें और उनको ज़बह करें और उस बर्रे का खून अपनी चौखटों पर, चौखटों के दाएं बाएं और चौखटों के ऊपर लगाना। और जब मिस्र में मौत का फरिश्ता आएगा तो बनी इस्राएल के घरों में दाखिल नहीं होगा। खुदा ने कहा कि तुम जिस बर्रे को ज़बह करके उसका खून अपनी चौखटों पर लगाओ, उसे उसके सर से पांव तक उसे आग पर भून कर खाना। उसका गोश्त उबालना नहीं, कच्चा नहीं खाना, तुमने उसके टिक्के बनाकर खाना है और रातों रात उसको खाना है। अगर किसी से वो ज्यादा हो, ना खा सके, तो उसको सुबह तक जला देना। और खुदा ने बनी इस्राएल को कहा कि तुम्हारे मर्द जो फसह में शामिल हो उनका खतना किया जाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने इस्राएल की रिहाई के लिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। और जब उन्होंने एक एक बर्रा घर से थी, एक एक घर के हिसाब से लिया और ज़बह किया, और खुदा ने कहा कि तुम्हें से रातों रात खाना है और इस तरह खाना है। तुमने जूतियां पहनकर, तैयारी करके, लाठियां हाथ में लेकर, इस तरह तुम्हारी तैयारी हो कि जब अलार्म बज जाए और मिस्र से निकलने का जब घंटी बज जाए तुम जल्दी से निकल जाना। और कलाम खुदा में लिखा है जब बनी इस्राएल ने वो बर्रे ज़बह किए, अपनी चौखटों पर उसका खून लगाया, जो यीशु मसीह की मिसाल है, जो यीशु के खून को बयान कर रहा है, जो यीशु की सलीब का बयान कर रहा है। और लिखा है कि जब उन्होंने अपनी चौखटों पर बर्रे का खून लगाया और रातों रात उन्होंने उस बर्रे को आग पर भूनकर खाना शुरू किया, और जब मौत का फरिश्ता मुल्क मिस्र में आया तो फराउन से लेकर वो जो चक्की पीसने वाली औरत थी, वहां के गरीबों तक, मजदूरों तक, और हर घराने पर जितने भी मुल्क मिस्र के मिस्री लोग थे, हर खानदान के पलौठे को फरिश्ते ने मार दिया। लेकिन बनी इस्राएल के घरों में कोई भी न मरा। हर हवान और हर इंसान का पलौठा मुल्क मिस्र में मर गए। और फिर फराउन ने मजबूरन मूसा से कहा कि अपने लोगों को लेकर निकल जा, मेरे मुल्क से निकल जा। और खुदा ने अपनी कौम को बड़ी कुदरत से रिहाई दिलाई। और उस याद में बनी इस्राएल आज तक ईदे फसह मनाते हैं। मुल्क मिस्र की गुलामी से रिहाई पाने की याद को ताज़ा करते हैं। और मुकद्दस पौलुस कहता है हमारा भी फसह कुर्बान हुआ है, हमारा भी मसीह कुर्बान हुआ है। जिस तरह बनी इस्राएल ने अपने खुदा की ईद मनाने के लिए फसह कुर्बान की, बर्रों को कुर्बान किया, खुदा ने मुल्क मिस्र से उन्हें रिहाई बख्शी। हमारा भी फसह कुर्बान हुआ है। बस आओ हम ईद करें, आओ हम खुशी करें, आओ हम नाचें गाएं, अपने खुदा की मदद सराई करें। बस आओ हम ईद करें।
कलाम खुदा में अगर हम यशाया की किताब देखें तो वहां पर इस बात को बयान किया गया है जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस करता है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। इस तरह बनी इस्राएल को रहाई देने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए बर्रों को ज़बह किया गया, बर्रों को कुर्बान किया गया। हमारा भी बर्रा कुर्बान हुआ है, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। और कलाम खुदा में लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। मेरे अजीज, जिस बर्रे का, जिस फसा का मुकद्दस पौलुस जिक्र करता है, वो बर्रा खुदा का बेटा यीशु है। वो फसा हमारा खुदावंद यीशु है। और यशाया 53 बाब में इसके मुतल्लिक लिखा गया है, उस कुर्बानी के मुतल्लिक, उस बर्रे के मुतल्लिक कि किस तरह वो कुर्बान किया गया, किस तरह वो ज़बह किया गया, किस तरह उसने हमारी मुशक्कतें उठाई, किस तरह उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, किस तरह उसने हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त की, किस तरह वो हमारा इज्जती हुआ। अगर हम यशाया 53 बाब उसकी दूसरी आयत से देखें, यहां पर लिखा है, यशाया इस तस्वीर को पेश कर रहा है, उस बर्रे की तस्वीर को, कि किस तरह उसने हमारी मुशक्कतें उठाई। लिखा है, ना कोई उसकी शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना की, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। उसमें कोई गुनाह नहीं था, उसने किसी गुनाह की सजा बर्दाश्त नहीं की गई। हमारे गुनाहों के सबब से यशाया कहता है कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हमने सियारेख अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। और मुकद्दस पौलुस कहता है, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। जिस तरह मुल्क मिस्र में वो फसा बनाई गई, वो बर्रे कुर्बान हुए बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रहाई दिलाने के लिए, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है कि जिसने हमें गुनाह से रहाई बख्शी, जिसने हमें बदकारियों से रहाई बख्शी, जिसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, जो हमारे लिए सताया गया, जिस पर हमारे लिए सियासत हुई, जिसने हमारा बोझ उठा लिया, हमारे गुनाहों का उसने फिदिया दिया, वो हमारा इज्जती हुआ। अगरचे उसने कोई गुनाह ना किया तो भी उसने हमारे सब गुनाहों का बोझ उठाया और हमारे
मारे, हाथों और पांव में कील लगाए, पसली में नेजा मारा, सर पर कांटों का ताज पहनाया। हमारे हर गुनाह की सजा उसे दी गई, हमारे हर गुनाह का बदला उससे लिया गया। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है, आओ हम ईद करें, क्योंकि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो मारा गया है, वो कब्र में उतारा गया है, फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ है। उसने मौत को ललकारा है, ऐ मौत तेरा दम कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। बस आओ हम ईद करें। मेरे अजीज, हमें ईद करना है क्योंकि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। मुकद्दस पौलुस कहता है, बस आओ हम ईद करें। किस तरह? वो कहता है, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। मेरे अजीज, खमीर जो है ये गुनाह की अलामत है। खुदाम यीशु ने लूका के इंजील के 12वें बाब में कहा, उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी का है। और फिर मरकस के इंजील के 8वें बाब की 15 में कहा, खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। खमीर जो है ये गुनाह की अलामत है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस न सिर्फ करंथस की कलीसिया को, बल्कि हर मसीही को जिसके लिए यीशु ने मार खाई है, हर मसीही को जिसके लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, कहता है कि आओ हम ईद करें, पुराने खमीर से नहीं। अगरचे खमीर हमारी जिंदगियों में है तो फिर ईद नहीं है। अगर खमीर है तो ईद नहीं है, अगर ईद है तो फिर खमीर नहीं होना चाहिए। मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया को खत लिखते कहता है, तुम अभी तक जिस्मानी हो। जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या जिस्मानी ना हुए? तुम में तफरके हैं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। और कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस कहता है, कोई दरख्त लगाने वाला है और कोई पानी डालने वाला है, लेकिन उसको बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है। और कहता है कि मैंने उस तौफीक के मुआफिक नींव रखी और दूसरा उसके ऊपर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि किस तरह के रद्दे रख रहा है, सोने चांदी या पत्थरों के, या घास और भूसे के। और कहता है कि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और आग खुद हर एक काम को आजमाएगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? और जो कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। मेरे अजीज, हमारे बदन जो हैं ये खुदा का मक़दस हैं। अगर हम इन्हें बर्बाद करेंगे तो खुदा हमें बर्बाद करेगा। अगर हम खुदा के मक़दस को नापाक करेंगे, खुदा हम में बसना चाहता है। खुदा ने अपने बेटे को हमारे बदन, हमारे गुनाहों के सबब से
कुर्बान किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है कि इस मकदस में से पुराना खमीर निकालें। ना हम पुराने खमीर से, ना पुराने कामों से ईद करें, बल्कि हमें किस तरह ईद करनी है। अगर हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो लिखा है कि हम अपने अंदर से पुराने खमीर को निकालें। हमें सच्चाई की बेखमीर रोटी को लेकर ईद करनी है। और कलाम खुदा फरमाता है कि सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है बस आओ हम ईद करें। किस लिए? कि हमारा फसा कुर्बान हुआ है, हमें रिहाई मिली है, हमारे गुनाहों का फिदिया दिया गया है, हमें आजाद किया गया है। जिस तरह बनी इस्राएल कौम को मिस्र से आजाद किया गया, हमें गुनाह से आजाद किया गया है, हमें हलाकत से, मौत से आजाद किया गया है, हमें जिंदगी बख्शी गई है। बस आओ हम ईद करें। लिखा है पुराने खमीर को निकाल कर ईद करनी है। पुरानी सोचें, पुराने ख्याल, पुराने काम, पुराना देखना, पुराना सुनना, पुराना बोलना, पुराने चाल चलन, पुरानी आदतें। हमारे नौजवान कानों में बालियां करके ईद मनाते हैं, हाथों में कड़े डाल रहे हैं। गुलामी की अलामत है ये। यीशु ने हमें आजाद किया है और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि हम अपनी जिंदगी से पुराना खमीर निकाल कर ईद करें। ये नहीं कि ईद है और हमने शराब पीनी है, ईद है हमने कानों में बालियां बांधी हैं, ईद है हमने हाथों में कड़े पहने हैं, ईद है हमने ऐसे ऐसे बेहुदा काम करने हैं, मोड़ों पर खड़े होकर, बाजारों में खड़े होकर, जो मसीहत के लिए खतरा है। एक शायर लिखता है मसीही जवानों जमाना बदल दो, गमे जिंदगी का फसाना बदल दो। मेरी कौम के जवानों, मसीहियों, हमें इस तरह ईद करनी है, ना कि पुराने खमीर से, बल्कि बेखमीरी रोटी से हमें ईद करनी है। और हकीकी ईद जो है वो आजाद होकर मनाई जाती है। गुलामी में ईद नहीं होती। फरौन कहता है यहाँ पर ईद कर लो। मूसा ने कहा हम यहाँ पर ईद नहीं कर सकते, गुलामी में ईद नहीं होगी, हम बियाबान में आजाद होकर अपने खुदा के लिए ईद करेंगे। मेरे अजीज, जब तक हम गुलाम रहेंगे, जब तक हम गुनाह करते रहेंगे, जब तक हमारी जिंदगी में पुराना खमीर रहेगा, तब तक ईद की खुशी हमारे लिए कोई हकीकत नहीं रखती। ईद जो है वो आजाद होकर मनाई जाती है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं ईद फसह बनी इस्राएल की मिस्र से रिहाई की ईद है। मुकद्दस पौलुस कहता है हमारा भी फसह कुर्बान हुआ है, खून से रिहाई है, खून से दिल पाक होता है, खून से खुशी है। बनी इस्राएल के लिए शर्त थी कि जो फसह में शामिल हो उनका खतना किया जाए, लेकिन जो ईदे क़यामत अल मसीह में शामिल होना चाहते हैं उनके दिल का खतना यीशु मांगता है कि उनके दिल का खतना हो, वो अपने अंदर से पुराना खमीर निकालें। ईदे फसह बनी इस्राएल की मुल्क मिस्र से रिहाई की याद दिलाती है, लेकिन ईदे क़यामत अल मसीह यीशु मसीह की जो जिंदा होने की ईद है, वो में इंसान के
गुनाह से रहाई की याद दिलाती है। हमारे गुनाहों का कोई कलवरी पर कफारा दिया गया है। हमारे खुदावंद ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसने मौत और कब्र को ललकारा है। ऐ मौत तेरा दंड, ऐ कब्र तेरी फतह। मेरे अजीज, अगर यीशु हमारी जिंदगी में है तो ईद है। एक शायर लिखता है अपने गीत में, तेरी दीद यीशु मेरी ईद यीशु। अगर यीशु नजर नहीं आता तो ईद भी नहीं है। अगर ईद करनी है तो यीशु को अपने साथ लेना है। तेरी दीद यीशु मेरी ईद यीशु। बिना दीद के ईद ना कुछ भी है। हमें ईद करने के लिए अपने कामों को यीशु के लायक बनाना है। अपनी जिंदगी से पुराना खमीर निकालना है, पुराने कामों को तर्क करना है। और मुकद्दस पौलुस कहता है कि हमें नया गुंदा हुआ आटा बनना है। हमें सच्चाई की रोटी लेकर, जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ये है वो जिंदगी की रोटी, जो इसको खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हमें उस जिंदगी की रोटी को लेना है। हमें जिंदगी के पानी को लेना है। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उजागर करना है। फिर हमारी ईद है। बस आओ हम ईद करें। कहें बस आओ हम ईद करें। और ईद हमें, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, जहां जहां पर ये कलाम सुनने वाले लोग हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि हमें ये ईद अपनी जिंदगी में रूह के फलों से करनी है। ईद खुशी है। हमारी जिंदगी में खुशी होनी चाहिए। हमें नफरतों को, कदूरतों को, हसद को, तफरकों को, जदाइयों को, बिदतों को अपनी जिंदगियों से निकालना है। हमें यीशु को अपने अंदर लेना है। मुकद्दस पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है? हमें अपने दिल में यीशु को बैठाना है तो फिर हमारी ईद है। अगर यीशु के बगैर है तो फिर ईद नहीं है, फिर खुशी नहीं है। फिर हमारी जिंदगियों में मुसाइल हो सकते हैं, मुश्किलातें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकते हैं, नफरतें हो सकती हैं। इब्लीस हमारे दिलों पर राज कर सकता है। हमें हमारे मुंह में वो अपनी लगाम डालकर जिस तरफ चाहे हमें वो घुमा सकता है। लेकिन अगर यीशु हमारे दिल में होगा तो फिर इब्लीस पर गालिब आने वाला, जिसने इब्लीस के सर को कुचला है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो हमारा मुहाफिज होगा। इब्लीस कभी हमारी जिंदगी में राज नहीं कर सकेगा। इब्लीस कभी हम पर गालिब नहीं आ सकेगा। फिर हमें दोबारा गुलामी में नहीं ले सकेगा। यीशु ने हमें आजाद किया है। अगर हम आजाद हैं तो फिर ईद है। अगर फिर गुनाह के गुलामी में तो कोई ईद नहीं है। जारी हो सकती है लेकिन बातनी नहीं है। अगर हमारा दिल साफ होगा, अगर हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर ईद भी होगी और दीद भी होगी। यीशु भी नजर आएगा, यीशु अंदर भी आएगा, यीशु बाहर भी होगा। लोग भी यीशु देखेंगे, हमारे दिल में भी यीशु होगा। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें और देखें कि हमने किस तरह ईद करनी है। हमारी जिंदगी खुदावंद के लायक होनी चाहिए। मैं प्यारी बहन अरशद को गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और खुदा के लोगों के लिए हम दुआ करेंगे।